First of all, I would like to thank to Next Bharat for giving me this platform and opportunity. And thank you so much, Pooja ji and Diksha Behnot ji and entire family of the Next Bharat. Now, as today I am going to speak about the Shakti, Bhakti, and Bharat's spiritual awakening. Uh, there are few important aspects which I will try to focus at how this Shakti, Bhakti, and spiritual awakeningness of India is a very important. And we, as a young researcher and scholars, we need to understand in the totality this cultural greatness of our country and how the particularly over the centuries, uh, how we have kept it intact over the centuries. So I will try to focus. Basically, I'll focus on first bhakti, and later on I'll focus on Saktism and how I'll give the references of many of the bhakti women saints, how they have helped to keep intact the spiritual awakening of India's over the centuries. So this way I'll plan my entire lecture. I do have 40 minutes next, and I'll try to sum up in the next 40 minutes. So एक हमारे जहन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि भक्ति क्या है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि भक्ति, हम सामान्य कहीं पर जाते हैं मंदिर में और अपना अर्पण करते हैं, वो एक भक्ति का माध्यम है या भक्ति का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। तो और भक्ति बेसिकली इमर्ज कहाँ से हुई, भक्ति का इतिहास कितना पुराना है, और किस तरीके से ओवर द सेंचुरीज में जो स्कॉलरली इंटरवेंशन हुआ, उन्होंने भक्ति को किस तरीके से एक वेल प्लान्ड ओरिएंटलिस्ट व्यू पॉइंट से तोड़ने मरोड़ने का काम और एक सेपरेट रिलीजन के रूप में इसको स्थापित करने की कोशिश की, उन पक्षों को सबसे पहले आई विल ट्राई टू फोकस। जो हिंदू सनातना रिलीजन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, और मोक्ष प्राप्ति का एक प्रारूप क्या होना चाहिए, ज्ञान मार्ग होना चाहिए, कर्म मार्ग होना चाहिए, और तीसरा है भक्ति मार्ग होना चाहिए। इसमें भक्ति को ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? क्योंकि हम जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको, जो परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ है। क्योंकि जो री इनकारनेशन की थ्योरी है हमारी, और हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, उससे मुक्ति चाहिए। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज द salvation, and how to get the salvation either through the jnana marg or the karma marg. Now, what is the problem in the jnana marg? ज्ञान मार्ग इज द प्रॉब्लम दैट हम इंद्रिय जागरण को पूरी तरीके से, जो हमारा एक तरीके से परम ब्रह्म को जानने की जो एक तरीके से प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हर सामान्य व्यक्ति उस तरीके से अपना इंद्रिय जागरण नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो पाथ ऑफ सैल्वेशन है, that the bhakti was considered as the ultimate path of the salvation. And in the bhakti we see that that three different sects are there: Saivism, Vaishnavism, Saktism, and there is a fourth one which recently became very prominent. It is called as Smartism.
मैं अपने लेक्चर के दौरान बताऊंगा कि किस तरीके से स्मार्टिज्म आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्ट इन विच there is not any a fixed ultimate deity to any individual one should surrender. They will consider Vishnu also equally important, and the Shiva also very important, and the Shakti also. There is not a fixed deity which will be the ultimate deity. So the interesting thing is that India's this cultural or spiritual awakeningness में एक important चीज ये है कि these sects they do not deny the existence or authority of other gods. And this is the beauty of the Sanatana. When you will see the Abrahamic religion, there is a ultimately a one particular god which will be the final god, and all the male deities are there. But in the Indian tradition of the Hinduism, you will see that the female deities are also very equally very important, in which Durga is a protector, Kali is the destroyer of the demons, and many others also will be there. So there is a no any kind of the deny in the in this uh, these in these sects actually, and in a sense they are they will complement to each other. This is a complementary kind of the system in which there is no enmity. And all these like Saivism, Vaishnavism and Shaktism, there are the different sects are there, degree of differences are there. It also shows that what kind of the rich rationality or the space of the thought is there in the Hinduism, that if you have a degree of difference, then you can have your own kind of opinion. For example, when there was a non-dualism was particularly जो अद्वैतवाद है उसका उसको जब प्रतिपादित किया गया शंकराचार्य के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, लेकिन माया के आवरण की वजह से हम इसको समझ नहीं पाते हैं और ज्ञान की वजह से समझ पाते हैं। तो उसको भी जब चैलेंज किया गया, किसके द्वारा? माधवाचार्य के द्वारा और रामानुजाचार्य जी के द्वारा, तो वो एज ए चैलेंज के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे लिया गया। उसको एक थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में उसको स्थान दिया गया, रैशनैलिटी में उसको स्थान दिया गया, जिसमें ड्यूअलिज्म जब शंकराचार्य के अद्वैतवाद है उसमें ड्यूअलिज्म के माध्यम से उसको नॉन ड्यूअलिज्म को चैलेंज किया गया, और उसमें कहा गया कि जो अंतर वास्तविकता जो है आत्मा और परमात्मा का अंतर है वो वास्तविक है और वो महत्वपूर्ण है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में अलगाव है। भगवान को ही एक सर्वोच्च रूप में माना गया, जिसमें विष्णु को सर्वोच्च रूप में माना गया, और व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा अलग रहती है। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि दोनों एक ही है, माया के आवरण की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, और उसमें भक्ति को मोक्ष का एक सच्चा मार्ग माना गया। इसी तरीके से क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म में हम देखते हैं कि शंकराचार्य से सहमति ली गई कि एक ही परम सत्य है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, और ब्रह्म को कुल मिला के हम किस तरीके से अपने घनिष्ठता दोनों में, परम ब्रह्म और आत्मा के बीच में घनिष्ठता है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं, उनको एक नहीं माना गया। रामानुजाचार्य जी ने उसको क्वालिफाइड ड्यूअलिज्म में नॉन ड्यूअलिज्म में उनको अलग अलग रूप में माना। तो ये एक तरीके से सनातन धर्म की वो एक ब्यूटी है कि किस तरीके से यहां पे एक एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया जा रहा। द एग्जिस्टेंस इज so much welcomed by each other. So in this way we see that there are the many subsects are there, either it's in the Saivism or it's in the other. So
in the Saivism, we see that Lord Shiva was considered as the ultimate supreme deity, and uh, it is also believed that he has created Lord Vishnu and Lord Brahma, and he was believed as a destroyer, but the important part is that many of the Saivists, they consider him as a creator, sustainer, and destroyer of this universe. So this is considered as a one of the oldest sect of the Hinduism, and in this way there are many subsects are there, जिसमें शिवा सिद्धांता है, वीर शिवा है, लिंगायतिज्म है, and they have the degree of difference. And there are Nath Sampradaya, Kashmir Saivism or Trika Saivism. There is a Aghara Sampradayas are there. There is a in the Vaishnavism, you will see that Lord Vishnu has been considered as a creator, sustainer, and destroyer of the world. And many subsects, they consider the avatars are also worshipped equally, very importantly, in which Lord Rama and Radha. And there is a very important that U-shaped tilak is applied. और वहां पर सैविज्म में भस्म आती है इस तरीके से लगाया जाता है. एंड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ द वैष्णविज्म आर द भगवत गीता, Bhagavad Purana, Ramayana, and Mahabharata. Those are the epic text, and many of the additions are there added in the after many centuries. Also, it is a continuous. It's a part of the Jnana Parampara in which knowledge is added over the centuries, and there is a not any claim that this is a part of India's rich tradition which was prevailing for the centuries. So this is a very important. And in this Vaishnavism, we see that there is a Gaudiya Vaishnavism, जिसमें Hare Krishna movement has been started. Sri Chaitanya Mahaprabhu has started this movement, and he was the one who was considered as a combined incarnation of Lord Krishna and goddess Radha. And there is a Manipuri Vaishnavism also. They do worship Lord Krishna, but not alone. Along with the Radha, they do worship. And there is a Nimbarka Sampradaya. They advocated dualistic non-dualism, and also known as a Kumara Sampradaya, Hamsa Sampradaya, and Sankadi Sampradaya. And Sri Vaishnava Sampradaya is also very important, which has focused on a social inclusiveness, and it shows that over the centuries, this is the kind of blame which has put up by many of the leftist liberals or the Orientalists over the centuries, that India is not there was not a social inclusiveness in India. It is a clear-cut example that in Sri Vaishnava Sampradaya, there was a samrasta and social inclusiveness was there, in through which each and every caste community was accommodated in this particular fold. And Rudra Sampradaya was there, and apart from that, Varkari Sampradaya. And in the Varkari Sampradaya, they worship Panduranga or Vittal, Lord Krishna. And Ramanandi tradition, in which Ramavats are they are known as a Ramavats, and this is also very important Advaita tradition. Apart from that, in the Vaishnavism, we see Odia Vaishnavism. Jagannath is the supreme deity, and Mahanubhava Sampradaya is also there. Apart from that, Sahajian and Baul tradition, and there are many more. Actually,
all these traditions shows that how there is a complete kind of the respect of their of different kind of the ideas and everything. Now I would like to draw upon your sorry. After that, there is a very importantly, after this Vaishnavism, there is a Shaktism. In the Shaktism, you see that Durga is a protector, Kali destroyer, and destroyer of the demons. And uh, focal point of Shaktism is the power of the universe, and uh, meditation upon the worshipper dedicates himself to the mother. This is a very important. Now, two very after this particular kind of the journey, that although there is a degree of difference, and how who is the supreme deity and how they consider themselves as a supreme, but after that also there is a mutual respect for either Saivism different sects or the Vaishnavism different sects, or in the Shaktism also. Now there is a in this spiritual journey of the country, you will see that orientalist, leftist, and many others, they have tried to disrupt with their ideas this kind of the journey. And what they have done, they have systematically tried to coin the term in terms of the debates has been generated by them, in which they say that origin of bhakti they have linked with the Christianity. Weber, William Jones, S.T. Colebrook, etc. They say that it was a with the effect of the Christianity, that this particular religion, or they have termed it as a religion also, and they said that bhakti have emerged actually in this process. They say that the particular kind of the monolithic एक जो एकेश्वरवाद की परिकल्पना है, उसको वो कहते हैं कि ये एकेश्वरवाद की कल्पना जो है वो क्रिश्चियनिटी से आई। और उसके अलावा जो इस्लाम है, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं और जो हिस्टोरियन है, जिसमें हम देखते हैं कि हुमायूं कबीर है, रॉबिन्सन है, फ्रांसिस डे है, एल्टन है, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल है, ताराचंद है, इरफान हबीब है, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली इसको एक तरीके से उसको एक तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिकली क्या किया, उन्होंने सिस्टमेटिकली भक्ति को इस्लाम के साथ क्लब करने की कोशिश की, और कहा कि जो इगलिटेरियन धारणा है इस्लाम की, उस इगलिटेरियन धारणा ने क्या किया, एक तरीके से भक्ति जैसे रिलीजन को इमर्ज करने में एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली सहायता देने का काम किया। बाद में डीडी कोसाम्बी, रे चौधरी, ये आर एस शर्मा, अदर लोगों ने बहुत सिस्टमेटिकली से भक्ति को, जो एक रिलीजियस मूवमेंट था, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था, उसको फ्यूडलिज्म से क्लब करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि भक्ति का आविष्कार इसलिए हुआ ताकि फ्यूडलिज्म को कंटिन्यू किया जा सके, लॉर्ड और वसाल के रिलेशन को स्थापित किया जाए। तो एक तरीके से बहुत सारा झूठ गढ़ा गया भक्ति के आसपास, और जो स्पिरिचुअल एक जर्नी थी भारत की, उस स्पिरिचुअल जर्नी को मारने का एक सिस्टमेटिक प्रयास किया गया। इसी को कुल मिला के इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि सुष्मिता पांडे, प्रोफेसर रेखा पांडे, आरजी भंडारकर, रे चौधरी, ए.के. रामानुजन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली इसको एक तरीके से कर्टेल करने का काम किया, और उन्होंने भक्ति को क्लब किया। किससे? भक्ति के जो उद्धरण है कठोपनिषद में मिलते हैं, उन उद्धरण को उन्होंने उद्घाटित करने का कार्य किया। साथ में भगवत गीता is not just a sermons to the Arjuna. They are more important because it is a fight of the जो महाभारत का
बैटल ग्राउंड है वो महाभारत का बैटल ग्राउंड, जो सामान्य जीवन का एक तरीके से आपस में जो संघर्ष द्वंद्व चलता रहता है मनुष्य का, उसको भी कहीं ना कहीं दिखाने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है वो। तो इस तरीके से इस स्पिरिचुअल जर्नी को उन्होंने वापस स्थापित करने का काम किया, और जो ओरिएंटलिस्ट व्यू पॉइंट है, जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है, जो जिस तरीके से आक्रांताओं ने इस देश की इस स्पिरिचुअल जर्नी को खत्म किया करने का काम किया, और एक स्कॉलर्स के ग्रुप ने किस तरीके से उसको उनके आक्रमण को महिमा मंडन करते हुए उन्हीं के जो रिलीजन्स को किस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी पे थोपने का काम किया, इसको सिस्टमेटिक तरीके से इन सारे स्कॉलर्स ने, ए के रामानुजन और सारे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने पूरा इसको उद्घाटित करने का काम किया कि किस तरीके से इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को मारने का काम किया। नाउ I will focus on a few important aspects of bhakti, like जैसे किस तरीके से इन्होंने जर्नी को एक तरीके से कंटिन्यूटी में रखा। एक इंपॉर्टेंट मैं उदाहरण देता हूं। भक्ति के प्रारूप में जो मीराबाई है, मीराबाई को ओवर द सेंचुरीज आप लेफ्टिस्ट राइटिंग्स में देखोगे या अदर राइटिंग्स में देखोगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इसको स्थापित करने का काम किया, उन्होंने इसको स्थापित करने का काम किया कि किस प्रकार से मीराबाई ने पैट्रियार्की के खिलाफ आवाज उठाने के काम किया। मीराबाई ने स्वच्छंद रूप से भक्ति का पालन किया। मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को अपना पति मानकर इष्ट देव की तरह उसका पालन किया, उसको अपना समर्पण किया। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरीके से एक सिस्टमेटिकली एक गिमिक के तौर पे पेश किया गया भारतीय जो लेखन है उसमें, और बार बार इसको उद्घाटित करना चाहती हैं वो। मीराबाई सी रिवील्स हर लव, that she states that in one of her couplet, what she says that she like Gopika Mirabai revealed her love fearlessly. Her sang the songs of the beloved. She figured everything and refused the death also. Nothing happened to her after consuming the poison also. And she was not feeling ashamed of the love with the Krishna. लोक लाज, क्योंकि जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म को उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से क्या किया था, समर्पित करने का काम किया था। इसी तरीके से अक्का महादेवी का उदाहरण आता है। अक्का महादेवी ने जब अपने पति के साथ कंज्यूमेट नहीं किया, उन्होंने ये कहा, ऑल्दो शी बिलोंग टू ए वेरी वेल्दीएस्ट फैमिली एंड she after the marriage she has denied to consummate with her husband, and she said, like, I am totally into the in the bhakti, and she walked naked, and she had this is a particularly tradition of this country, that she had a open discussion with the fellow saints also during that time period. So this shows that how importantly this land actually we have a kind of the spiritual awakening during the medieval time period also in this continuous kind of the journey. And very importantly, you will see that there are the many saints like Karmabai is there, Fulibai is there. There is a Ganga Sati. There are the many Gujarati saints, जिनकी लाइफ को आप देखोगे तो इम्पोर्टेंटली उन्होंने क्या किया है, इम्पोर्टेंटली उन्होंने अपने सहजोबाई होगी, साध्वी सीता सुलक्षणी होगी, दयाबाई होगी, छात्र कुंवरबाई होगी, समनाबाई, गौरीबाई, शिरोमणि फूलीबाई होगी, उसके अलावा
तोरल, रत्नाबाई, लोयल और गौरीबाई, ये सारे सेंट्स वो सेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया, इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक अवेकनिंगनेस की। इन्होंने इस समय, जिस समय भारत में आक्रांताएं कंटिन्यूअसली 712 के बाद में जिस तरीके से भारत में एक तरीके से एक रिलीजियस स्टेट स्थापित करने की कोशिश की गई, यहां पर जजिया लगाया गया, यहां पर पर्शियन लैंग्वेज को लाया गया, यहां पर सिस्टमेटिकली आप शरीयत को लगाया गया, यहां पर जिस तरीके से रिलीजियस टैक्स लगाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, उस समय भक्ति एक माध्यम बना, न केवल वैष्णवाइस्ट, सेवाइस्ट और शक्तिज्म, इन सब ने, और जो लोकल ट्रेडिशंस थे, उन्होंने एक तरीके से भारत की स्पिरिचुअल अवेकनिंगनेस को इंटेक्ट रखने का काम किया, और उस समय की जो आक्रांताएं थी, थियोक्रेटिक स्टेट को स्थापित करने की जो परिकल्पना थी, उसको डिबंक करने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय समाज के द्वारा उस समय इस तरीके से दिया गया, जिसका उदाहरण हम इन संतों की वाणियों में, इन संतों के जो डिस्कशंस हैं उसमें हम इस तरीके से पाते हैं। इन्होंने जो जिन मंदिरों को, क्योंकि भक्ति मूवमेंट आल्सो, वैष्णवाइस्ट भक्ति मूवमेंट आल्सो गॉट डिवाइडेड इनटू टू मेजर फोल्ड, और उसमें सगुण निगुण निर्गुण की जो धारा थी, तो निर्गुण धारा ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक इस तरीके का मूर्ति भंजन हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज करने का काम किया। अपनी जो वाणियां थी, इन पूरे संतों की उन वाणियों के माध्यम से उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंगनेस, और उसको पूरी तरीके से और उन्होंने एक ही मैसेज दिया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसको पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी मैसेज दिया, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये पिंड और वो पिंड एक ही है, और उनको एक एकाकार होने की जो कल्पना है उसको उन्होंने साकार करने का एक तरीके से कार्य किया। तो इस तरीके से जो अब्राहमिक रिलीजन है उनको चैलेंज करने का काम इस समय यहाँ के भक्ति धारा ने और शक्ति की धारा ने एक तरीके से क्लब, इस तरीके से उन्होंने बड़े रूप में एक तरीके से यहाँ पर मेजरली एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय समाज में उस समय किया। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच।